وہ بہت زیادہ باخبر آدمی ہے، اپنی طرف سے آج والے واقعے کا ذکر نہ چھیڑنا، اسے شبہ ہو جائے گا کہ ہم نے اس کی درخواست کو نظر انداز کر دیا اور جان سے الجھ گئے۔ اس کا انحصار اخبارات پر ہے۔ اگر اس واقعے کو نہیں دبایا جاتا اور اخبارات میں خبریں لگ جاتی ہیں تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ شہر میں رونما ہونے والے واقعات سے پوری طرح باخبر رہنا میری پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ دوسری صورت میں محتاط رہوں گا۔ فی الحال خدا حافظ۔ میں ڈرپ کے جنجال سے اپنی جان چھوڑا کے CST لگانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ صبح ہونے سے پہلے تم سے دوبارہ رابطہ کروں گا۔ تمہارا دوبارہ فون نہ آیا تو صبح میں تم سے ملنے کے لیے اسپتال آؤں گا۔ مجھے ایک اٹینڈنٹ کو دن رات اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر تم گھر کا سکون چھوڑ کر یہاں کچھ وقت گزارنا چاہو تو اس وقت بھی یہاں آ سکتے ہو۔ ہوٹل کے بجائے اسپتال میں روپوشی کا تجربہ میرے لیے خوشگوار نہیں رہا۔ مجھے ابھی سے وحشت ہونے لگی ہے۔ رات کو میرا آنا ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اندرون خانہ واقعات کوئی اور رخ اختیار کر لیں۔ ایسی صورت میں چیف کسی بھی وقت مجھ سے بات کرنے کی ضرورت محسوس کر سکتا ہے۔ میں رات کو گھر سے غائب رہا تو اسے خاصی کوفت ہوگی۔ وہ اپنی مجبوری کو مجھ سے زیادہ سمجھتا تھا۔ میں نے اس کی آمد کے لیے اصرار نہیں کیا اور فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ فون پر اول خان سے بات کرنے کے بعد مجھے خاصا سکون محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سینے سے ایک بوجھ سا اتر گیا ہو۔ میرے لیے احساس بھی طمانینت کا باعث تھا کہ جان کو ذکر دینے کے بعد میں تنہا نہیں رہا تھا۔ میرے ساتھیوں میں سے کم از کم اول خان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میں نے شہر کے کس اسپتال میں پناہ لی تھی۔ گھٹن سے نجات حاصل کرنے کے بعد میں کچھ دیر تک بستر پر دراز کچھ سوچتا رہا۔ پھر میں نے اسپتال کے عملے میں سے کسی کو بلانے کے لیے اپنے سرہانے لگی ہوئی گھنٹی بجا دی۔ اس اسپتال میں طبی علاج اور پیشہ ورانہ دیانت کا جو بھی معیار رہا ہو، ذاتی دیکھ بھال کا معیار بہت اعلیٰ تھا۔ مجھے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ذرا سی دیر کے بعد ایک نیا مردانہ چہرہ میرے کمرے میں موجود ہوا۔ وہ اپنے طور طریقوں سے میل نرس کی بجائے وارڈ بوائے نظر آ رہا تھا۔ سسٹر کو بلاؤ، مجھے سخت الجھن اور وحشت ہو رہی ہے، میں نے اسے کہا اور وہ الٹے قدموں لوٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پرانی نرس کے ساتھ آ گیا۔ نرس کے ہونٹوں پر نرم اور مہربان مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ سسٹر، مجھے ڈرپ سے سخت وحشت اور گھبراہٹ ہو رہی ہے، اسے نکال دو۔ میں نے اس کی صورت دیکھتے ہی احتجاج کیا۔ وہ میرے بستر کے قریب آ گئی اور ڈرپ کی نلکی کو چھیڑتے ہوئے بولی، اس میں ایسی کوئی دوا نہیں ہے جس سے آپ کو گھبراہٹ ہو۔ صبح تک آپ کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ طاقت کے لیے رات بھر یہ ڈرپ چلے گی۔ ہو سکتا ہے کہ صبح ڈاکٹر صاحب معائنہ کرنے کے بعد آپ کے آپریشن کا فیصلہ کر لیں۔ اس کی آخری فکر نے میرے اوزان خطا کر دی ہے۔ میں آپریشن نہیں کرواؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب جو فیصلہ چاہیں کر لیں، مگر وہ مجھے میری مرضی کے خلاف آپریشن تھیٹر میں نہیں لے جا سکیں گے۔ میں کسی کو اپنے بدن پر نشتر زنی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ صرف میرا خیال ہے۔ وہ جلدی سے بولی، ہو سکتا ہے کہ سرے سے آپریشن کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپریشن کے لیے مریض کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس وقت آپ کی بہتری کے لیے ڈرپ دی جا رہی ہے۔ ڈرپ میں سرنج سے کچھ دوائیں بھی شامل کی گئی تھیں۔ میں نے اشتباہ آمیز لہجہ میں کہا، وہ کیا تھی؟ ایک درد ختم کرنے والی دوا تھی، دوسری دوا سے آپ کو آرام سے نیند آ جائے گی۔ اسے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا، میرا سارا درد ختم ہو چکا ہے۔ خواہش کے باوجود میں اسے یہ نہ بتا سکا کہ میرے پیٹ میں کہیں کوئی درد نہیں تھا۔ مجھے مسکن دعا کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں خود ہی سو جاؤں گا۔ تم یہ ڈرپ نکال دو، اس نے مجھے مریض بنا دیا ہے، اس کام میں دیر نہ کرو۔ اس نے لمحے بھر کے لیے سوچا، پھر بولی، میں ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں کرتی۔ اب ذرا سا صبر کریں، میں ڈیوٹی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ کمرے سے چلی گئی اور میں فکر مند ہو گیا۔ جس طرح سمندر میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں پالا جا سکتا تھا، اسی طرح اسپتال میں رہ کر ڈاکٹر سے الجھنا ممکن نہیں تھا۔ وہ مصیبت میری اپنی لائی ہوئی تھی اور میں جانتا تھا کہ اپنے کیے ہوئے کا کوئی علاج ممکن نہیں تھا۔ میرے پاس صبر اور انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مریضوں کی ذاتی دیکھ بھال کی اعلیٰ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ نرس جلد ہی ڈاکٹر کو ساتھ لے کر دوبارہ میرے کمرے میں آ گئی اور میرا بلڈ پریشر اور نبض چیک کرنے لگی۔ ڈاکٹر مجھے ڈرپ اور اس میں ملی ہوئی دعاؤں کی افادیت سمجھانے پر مصر رہا اور میں کسی پیچیدہ نفسیاتی مریض کی طرح اپنی الجھن، وحشت اور گھبراہٹ کے اظہار پر زور دیتا رہا۔ اسپتال کے عملے کا کچھ نہیں بگڑ رہا تھا۔ سیل ٹوٹنے کے بعد ڈرپ اور دواؤں کی پوری قیمت میرے بل کا حصہ بن چکی تھی۔ ڈرپ اور دواؤں کے جملہ برے اور بھلے اثرات کا شکار میں ہو رہا تھا۔ میری بڑھتی ہوئی بحث سے ڈاکٹر کا منہ بن گیا اور اس نے نرس کو ڈرپ نکالنے کا ناخوشگوار حکم دے دیا۔ آپ یوں ہی منمانی کریں گے تو علاج اور افاقہ کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر نے ناگواری سے پوچھا۔ مجھے کھانے اور پینے کی دوائیں دے دیں، ان پر میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ ڈرپ آپ کی خواہش پر روکی گئی ہے، اب آپ سونے کی کوشش کریں۔
जब डॉक्टर अमजद आपके बारे में फैसला करेंगे। उसने रूखे पीके लहजे में कहा। आप मुझे मुतबादल दवाएं दे दें, वो मैं इस्तेमाल कर लूँगा। मैंने उसे यकीन दिलाया। मैंने बेहतरीन इलाज तजवीज़ किया था, मैं इससे कम पर समझौता नहीं कर सकता। ये मेरे पेशावराना असूल के खिलाफ है। आप सुबह तक दर्द वगैरह बर्दाश्त करें, डॉक्टर अमजद आपको देखकर अपनी राय देंगे। दर्द बढ़ने लगे तो बिला तकल्लुफ मुझे दोबारा बुला लें। वो मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर कमरे से निकल गया। इस दौरान में नर्स ड्रिप बंद करके उसके नलकी को कैनोला से अलग कर चुकी थी। डॉक्टर के पीछे पीछे वो भी कमरे से बाहर चली गई। उसने डॉक्टर के पीछे रुककर मुझसे कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी। मेरे बदन के किसी हिस्से में दूर दूर तक किसी किस्म के दर्द या तकलीफ का वजूद नहीं था जिसे बर्दाश्त करना पड़ता। मेरी एक शिकायत को मुफ्त के सिविल अस्पताल में सिरे से मुस्तरद कर दिया गया था और उस महंगे अस्पताल में इसी शिकायत को मिन्नो तस्लीम करके पेचीदा इलाज की दाग बेल टाल दी गई थी। वो हमारे मुआशरे का एक भयानक और तकलीफ दे रुख था जो जान एशकोफ की बदौलत है मेरी नज़रों में आ गया था। यह हवस ज़र की इंतहा थी कि तिब के मुकद्दस पेशे में भी पैसे के हसूल की हवस रखने वाली काली भेड़ें दर आई थीं। कपड़े के मजबूत टेप के नीचे कैनोला की नर्म और लचकदार सुई मेरे बाएं हाथ की एक नस में बदस्तूर उतरी हुई थी। मैं कुछ देर तक मसैरी पर पड़ा अपनी इस घायल नस को धीरे धीरे सहलाता रहा। फिर मैंने बिस्तर छोड़ दिया। मैंने आहिस्तगी से अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बुलट किया, सिगरेट सुलगाई और अपने मुख्तसर थैले की तरफ मुतवज्जा हो गया जिसमें CSD मौजूद थी। मैंने CSD पर अपने कई तजर्बात के बाद इसे टेलीफोन लाइन से जोड़ने का सहल और रेडीमेड तरीका दरियाफ्त कर लिया था। चंद लम्हों में CSD वाली डिबिया तारों के जरिए लाइन से मुंसलिक होकर मेरे तकिए के नीचे पहुंच चुकी थी। इसका हर वक्त मेरी दस्तरस में रहना जरूरी था ताकि मैं ज़रूरत पेश आने पर बिला ताख़ीर इसे ऑन या ऑफ कर सकूं। शहर में अपने साथियों से महफूज राब्ते के लिए इस आले का इस्तेमाल मेरे लिए नागुज़ीर था। अमेरिका की सरजमीन पर मेरे हाथों मौत के घाट उतरने वाले बद्रीनाथ की हड्डियां तक इस वक्त तक गल सड़ कर नापैद हो चुकी होंगी। राका वो घाग एजेंट अपनी सारी चालाकियों समेत नेस्तो नाबूद हो चुका था, मगर उसकी दी हुई CSD इस वक्त बेकार आमद थी। बदरी के करतूत ऐसे नहीं थे कि उसे ज्यादा दिनों तक याद रखा जाता, लेकिन CSD के हवाले से वो मरदूद अक्सर मुझे याद आता रहता था जिसके साथियों ने एक अरसे से मेरा जीना अजीरन किया हुआ था। मुझे खाने की कतई कोई हाजत नहीं थी। अस्पताल की नर्स अपनी गुफ्तगू के दौरान मुझे यह इशारा दे चुकी थी कि अगली सुबह मेरी मुतवक्का सर्जरी की वजह से मेरा खाना पीना बंद करके मुझे सिर्फ ड्रिप पर रखने का फैसला किया गया था। वैसे भी इस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। कमरे में अमले के किसी फर्द के रजाकाराना आमद के इम्कानात न होने के बराबर थे। मैंने दरवाज़ा बुलेट रहने दिया और नाइट लैंप रोशन करके कमरे की दोनों ट्यूब लाइट्स गुल कर दी। वो बंदोबस्त करके मैंने अपनी दानिश में हर बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ बाड़ खड़ी कर दी थी। कमरे में कोई ऐश ट्रे मौजूद नहीं था। साफ जाहिर था कि कमरे में तंबाकू नोशी की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई थी। मैंने कमरे में टहल टहल कर सिगरेट ख़त्म की और इसका सुलगता हुआ आखिरी सिरा बाथरूम के कमोड में तल्फ करके दोबारा बिस्तर पर पहुंच गया। मैंने अव्वल खान से दोबारा राब्ता करने के इरादे से रिसीवर उठाया ही था कि मेरे जहन में गजाला का मासूम और फिक्रमंद चेहरा मुजस्सम हो गया। मुझे एहसास था कि वो मेरे बारे में फिक्रमंद होगी। मैंने फौरी तौर पर गुलशने इकबाल में अपने घर का नंबर मिला लिया। घंटी बजने पर दूसरी तरफ से गजाला ने रिसीवर उठाया और मेरी आवाज़ सुनकर उसके लबो लहजे में अजीब वालियाना सी मुसर्रत से मटाई। वो कह रही थी, मेरा दिल कह रहा था कि इतनी देर से आने वाली ये कॉल आप ही की हो सकती है। आप कहाँ हैं और किस हाल में हैं? CSD को फाल करते ही मैंने सबसे पहले तुम्हें फ़ोन किया है। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक अस्पताल में हूँ, मैंने खुशदिली से कहा। अस्पताल में? मगर क्यों? मेरे इंकशाफ पर शायद उसे गहरा झटका लगा था। पल भर ही में उसकी आवाज़ से सारी बशाशत रुखसत हो गई थी। घर में किसी को यह इल्म नहीं था मैंने इस मर्तबा रोपोश होने के लिए किस किस्म के ठिकाने का इंतखाब किया था, इसलिए गजाला का अस्पताल का नाम सुनकर चौंकना फितरी था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैंने अस्पताल के कमरे को अपनी खुफिया कमीनगाह के तौर पर मुंतखब किया होगा। मेरी जुबान से अस्पताल का जिक्र सुनकर उसे अंदेशा हुआ होगा कि मैं जान एशकोफ से तसादुम में मजरूह हो गया था। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मैंने उसे दिलासा दिया। मैं हर किस्म की टूट फूट से महफूज हूँ। अपने दुश्मनों की निगाहों से बचने के लिए होटल की बजाय अस्पताल के कमरे में आ गया हूँ। मेरी तलाश में कोई इधर का रुख नहीं कर सकेगा। खुदा का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इत्मीनान के गहरे सांस के बाद गजाला की पुरस्कून आवाज़ आई। मैं कोशिश के बावजूद सोने में कामयाब नहीं हो सकी। मेरा ख्याल मुसलसल आपकी तरफ लगा हुआ था। आपके 9 बजे वाले काम का क्या रहा? सवाल करने के बारे में वो मोहतात थी, मगर मैं लाइन पर CSD के इस्तेमाल की वजह से बेखौफ था। मैंने खुलकर कहा। उसकी ठुकाई करके मैंने उसे
बहिरा अरब के गंदे साहिली पानी में फेंक दिया। वो अपनी उस अजीमत को जिंदगी भर भूल नहीं सकेगा। इस पूरी कार्रवाई में अव्वल खान और इसके आदमियों का किरदार बेमिसाल था। इन लोगों के बगैर जान को घेरना मुमकिन नहीं था। वो खबीस इम्कानी खतरात का अंदाजा लगाकर अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। शायद कुछ हलचल शुरू हो गई है। अभी 15 मिनट पहले आपके लिए जलाल का फोन आया था। तुमने उसे क्या जवाब दिया? मैंने उजरत में गजाला की बात दरमियान से उचक ली। मैंने कह दिया कि आपने उससे मुलाकात के बाद घर को खैरबाद कह दिया था। मैं आपके पता ठिकाने से बेखबर हूँ। शाबाश, मैंने उसकी तारीफ की। इस वक्त तुम्हारा बयान 100% दुरुस्त था। यह याद रखना कि मर्द के साथ अच्छी औरतों की भी एक जुबान होती है। अब भी अपने इसी बयान पर कायम रहना। उसे यह हवा न लगने देना कि मैंने फ़ोन पर तुमसे बात की है। मैं जानता हूं कि वो जान के बारे में नाखुशगवार चिरा करेगा, क्योंकि वो अपनी सरकारी मजबूरियों का कैदी है। मैं नहीं चाहता कि उसकी कड़वी कसीली बातों के जवाब में मेरी जुबान से कोई तल्ख बात निकले। हम दोनों का एक दूसरे से चंद रोज तक दूर रहना ही बेहतर है। आपके लिए वो बहुत काम का आदमी है और आपकी इज्जत करता है। आपके और उसके दरमियान कोई बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। कोई बदगुमानी पैदा नहीं होगी। 2-4 दिन में जान का किस्सा दब जाएगा तो उसके ज़हन में घुली हुई तलखियाँ खुद ब खुद कम हो जाएंगी। इस वक्त मैं इसके सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा, मगर अभी मामला ताज़ा है। वो मुझ पर बरस पड़ेगा। बेहतर तो यही है कि आप उससे दूर रहें। इत्तेफाक से कोई राब्ता हो जाता है तो आप साफ इनकार कर दें कि आपका और जान का आमना सामना हुआ था। अव्वल तो मैं इससे झूठ नहीं बोल सकता। फिर वो ये बात भी जानता है कि यहाँ किसी में इतना दिल घुरता नहीं है कि जान के रुतबे के किसी अमरीकी को जाल में घेर कर उसकी नाक की हड्डी तोड़ सके। किसी न किसी वक्त उसे दूसरे जराए से पता चल जाएगा कि मैंने STF के ताउन से यह काम किया था। उसकी नज़रों में मेरी साख गिर जाएगी। आप बिल्कुल सेहतमंद आदमी हैं। आपको अस्पताल में किस अहमक ने ले लिया? गजाला की चौंकी हुई आवाज़ आई। बाज़ प्राइवेट अस्पतालों में मरीज के मर्ज के बजाय उसकी जेब देखी जाती है। इन लोगों ने अल्लाह शाफी कहकर मेरा बाज़ाब्ता इलाज शुरू कर दिया है। बड़ी मुश्किल से मैंने इनकी लगाई हुई ड्रिप से निजात हासिल की है ताकि फ़ोन लाइन से CSD जोड़ सकूं। आप किस प्राइवेट अस्पताल में हैं? गजाला का लहजा तजस्सुस आमेज हो गया। मैं नाम नहीं लूँगा और असूलन तुमको इन बातों से बेखबर रहना चाहिए ताकि तुम्हें दूसरों के सामने झूठ बोलने का इर्तिकाब न करना पड़े। सुल्तान शाह मेरे सामने बैठा हुआ बहुत तवज्जो से हमारी बातें सुन रहा है। इससे मैं कुछ भी नहीं छुपा सकती। इससे कहो कि हमारी बातों की बजाय वीरा पर तवज्जो दे। वो किसी कमारे मर्द की तरफ मुश्किल से रागिब होगी। जो कुछ तुम्हारे इल्म में है वो सुल्तान शाह को भी बताया जा सकता है। ये कमारे मर्द की बात कहाँ से निकल आई? गजाला ने तायुर ज़दा आवाज़ में पूछा। वो मेरे और वीरा के दरमियान तखलिए में होने वाली बातों से बेखबर थी, इसलिए इसका वो सवाल फितरी था। यह मेरी राय थी, इसे सुल्तान शाह तक न पहुंचा देना। मेरा मुशाहिदा है कि शादीशुदा और वजीम मर्द वीरा की कमजोरी है। इस वक्त वह है कहाँ? अपने कमरे में मदहोश पड़ी हुई होगी। आज उसने कुछ ज्यादा पी हुई है। जब भी नशे की झोंक से जरा बाहर निकलती है, झूमती झामती कमरे से बाहर आती है और आपकी खैर खबर लेने के बाद दोबारा अपने कमरे में लौट जाती है। वो आज ज्यादा खुश है या फिर डिप्रेशन दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही है। नॉर्मल बहरहाल नहीं है। ये अपनी हरकतों से बाज ना आई तो किसी दिन शराब नोशी से इसका हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने दुख से कहा। मुश्किल यह है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। वो आपकी बात भी नहीं मानती। उसे भी मेरे बारे में ब्रीफ कर देना और यह बता देना कि मैं उसकी बिला नोशी से नाराज हूँ। मैं ज़रूर बता दूंगी, मगर इस पर कोई असर नहीं होगा। पता नहीं वो किस मिट्टी की बनी हुई है। वो जो भी मिट्टी रही हो, बहुत जरखेज, खुशबूदार और दिलावेज थी, मगर मैं वो बातें गजाला से नहीं कह सकता था। जलाल का दोबारा फ़ोन आ जाए तो मैं उसे क्या बताऊँ? गजाला ने गुफ्तगू का इख्तिताम करीब महसूस करते हुए पूछा। अभी ज़रा सी देर पहले बताया है कि ज़ुबान ना बदलना, जो कह चुकी हो उसी पर कायम रहना। उसे यह भी बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं किसी घर या होटल के बजाय अस्पताल में पनाह गुज़ी हूँ। वो अपने तमाम वसाइल बुरोकार ला कर मुझ तक पहुँच जाएगा। मैंने उसे ताकीद की। आपस के मामलात आप दोनों जाने, मैं आपकी हदायत पर पूरी तरह अमल करूँगी। कुछ देर बाद गजाला से गुफ्तगू ख़त्म हो गई। लाहौर से हमारी कराची आमद के बाद जो कुछ हुआ वो बस होता ही चला गया। हमारा इस दिन का इब्तदाई हिस्सा नॉर्मल अंदाज में गुजरा था, मगर जान के साथ एजेंसियों के नुमाइंदों के मुशतरका इजलास के बाद जलाल ने बराह रास्त हमारे पास पहुंचकर हालात का रुख यकसर बदल दिया था। इसका ख्याल था कि अमरीकी दबाव के तहत मुतवक्का तौर पर शुरू होने वाली मेरी तलाश की मुहिम से महफूज रहने के लिए मेरी रुपोशी नागुज़ीर हो गई थी। मैंने भी वो फैसला उसी बना पर किया था, लेकिन जलाल के चले जाने के बाद हमने जान के खिलाफ जो मंसूबा बनाया, इस पर अमल पैरा होने के बाद मेरा जलाल से बचना भी जरूरी हो गया था। मैं कुछ देर तक बिस्तर पर पड़ा यही सब सोचता रहा। मुझे मालूम था कि अव्वल खान मुझे आज खुद फ़ोन नहीं करेगा।
वो इस इंतज़ार में बैठा रहेगा कि मैं अपनी ड्रिफ्ट से निजात हासिल करके फ़ोन से CST जोड़ूं और फिर उससे रब्ता करूं। बदेसी हिसाब से रात के 12 बजे दिन और तारीख की तब्दीली अमल में आ गई। अपने रिस्ट वॉच के डायल पर निगाह पड़ते ही मुझे अव्वल खान का ख्याल आ गया और मैंने उसका नंबर मिला लिया। मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। अव्वल खान मुझे हैजान अमेज़ लहजा में बता रहा था, क्या तुमने CSD लगा ली है? इसे लगाए बगैर मैं तुम्हें हरगिज़ फ़ोन नहीं करता। हमारी आपस की बातें खतरनाक होती हैं, जो किसी दुश्मन के कानों में पड़ जाएं तो हमारे लिए मोहलक साबित हो सकती हैं। जलाल बहुत सरगर्मी से तुम्हें तलाश कर रहा है। मैंने इस बारे में अपनी लाइल्मी जाहिर की है। वो मुझसे क्या चाह रहा है? मैंने पुरतशवीश लहजा में पूछा। मैं उसे ज़्यादा नहीं कुरेद सका। हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारी अफसराना अना आड़े आने लगती है। मैं पूछते हुए झिझकता हूँ, वाज खुद कुछ बताने से गुरेज करता है। वैसे वो इस वक्त बहुत खुश और अच्छे मूड में था। अव्वल खान भी वो बात बताते हुए खासा खुश था। इसकी पहली बात काबिल फहम थी। वो दोनों अपनी अपनी तंजीमों के जिम्मेदार अफसर थे। फ़र्क ये था कि जलाल एक दस्तूरी एजेंसी से वाबस्ता था, जबकि स्पेशल टास्क फोर्स का वजूद हर कानून से मुआवरा था। दोनों की जुदागाना जिम्मेदारियां थीं। इनके दरमियान खुली गुफ्तगू में ये झिझक माने रहती थी कि वो कहीं अपनी हदूद से तजावुज़ करके दूसरे के महकमा जाती राजों के बारे में न पूछ बैठे और दूसरी तरफ से जवाब देने से इनकार कर दिया जाए। इसकी दूसरी बात हैरान कुन थी। अगर रुझान अशकोफ वाले मामले से वाकिफ हो चुका था तो उसका मूड खराब होना चाहिए था। मूड की बेहतरी से ही ये जाहिर हो रहा था कि उस वाक़े से बेखबर था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का शुमार मुल्क के हिसास तरीन खुफिया इदारों में होता था। यह नामुमकिन समझा जाता था कि मुल्क के दाखिली या खारजी महाज पर कोई अहम वाक़या रूनमा हुआ हो और IB के अहम कारपजदार उससे बेखबर रहे हों। तुमने उसकी मुसरत के सबब के बारे में कोई अंदाज़ा तो लगाया होगा? मैंने शायद ही। अंदाजे उसी वक्त लगाए जा सकते हैं जब खुली खुली बातें हों। उसकी जगह तुमसे बात हो रही होती तो मैं झट पूछ लेता कि इस वक्त क्यों चेक रही हो। उसने घर पर भी फ़ोन किया था। मैंने गजाला को सख्ती से मना कर दिया है कि उसे कुछ न बताए। उसे 2-4 दिन बाद ही मिलना बेहतर होगा। उसने कहा है कि तुम जहां भी हो उससे रब्ता करो। उसने तुम तक यह पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। फिर मुझे पूरा यकीन है कि जान के नाक टूटने का अहम आलमी वाक़या उसके इल्म में नहीं है। मैंने पूरे वसूख से कहा। यह ना मानने वाला मफरूज़ा है। अव्वल खान ने बेतकल्लुफ़ी से मेरी राय मुस्तरद कर दी। IB और ISI को हुकूमत की निगरां आंखें कहा जाता है। जान जब से कराची पहुंचा है सबसे बड़ा मौजूद सुखन बना हुआ है। आज का वाक़या पुलिस के रिकॉर्ड पर आ चुका है। यह नामुमकिन है कि जलाल इससे बेखबर हो। अगर उसने मुझसे ज़रा सी भी तलखी से बात की ना तो मैं फट पड़ूंगा और हमारे मरासम में हमेशा के लिए दरार पड़ जाएगी। मैंने मोहतात लबो लहजा में कहा। मैं इसीलिए उससे सामना या कोई राब्ता करने से गुरेज कर रहा हूँ। इसके बरक्स वो हर कीमत पर जल्द अज जल्द उनसे बात करने का ख्वाहां है। अव्वल खान ने जोर देकर कहा। वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? मेरे पास उसके इस्लामाबाद का नंबर नहीं है। मैंने सोचते हुए कहा। वो इस्लामाबाद नहीं गया, अभी कराची में है और रात के 2 बजे तक सद्दफ मेंशन के नंबरों पर दस्तयाब रहेगा। वो एक नया इंकशाफ था। अगर वो कराची में था तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कितना बेखबर होता। मुझे सद्दफ मेंशन के नंबर लिखवा दो। मैं इस नुक्ते पर गौर करूंगा। अगर मुनासिब हुआ तो उससे बात करूंगा। मैंने पुरतशवीश लहजा में कहा। अव्वल खान मेरे फ़ोन का मुंतजिर था, इसलिए सद्दफ मेंशन के 3 फ़ोन नंबर अपने साथ लिए बैठा था। उसने फौरी तौर पर वो नंबर मुझे नोट करवा दिए। इससे तुम्हें इस्लामाबाद के रद्द-ए-अमल के बारे में भी कुछ मालूम नहीं हुआ होगा। मैंने अव्वल खान से पूछा। उसका इस्लामाबाद जाना ही नहीं हुआ तो कुछ पूछना बेसूद था। बाद से खबरें लीक होने में ज़रा सी देर होती है, लेकिन एक बार यह सिलसिला चल निकले तो हर तरफ से खबरों, अफवाहों और तबसरों का एक रेला चल पड़ता है। इसके लिए शायद हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। अव्वल खान की वो बात मंतकी थी। रात को आने वाली बड़ी खबरें मुतलका अहम अफसरों को उनके घरों या दफ्तरों में मिलती थीं, जहाँ बेशतर निचला अमला मौजूद नहीं होता था। दिन के उजाले में भरपूर दफ्तरी सरगर्मियों में चपरासी और चौकीदार तक खुले कानून से अपने अफसरों की बहुत सी खुफिया बातें सुन लेते थे और दूसरों पर अपनी अहमियत जताने के लिए या फिर फितरी तजस्सुस से मजबूर होकर इन खबरों को कुछ मसाले के साथ आगे बढ़ा देते थे। यही वजह थी कि खबरों और अफवाहों का तूफान दफ्तरी औकात में ज़्यादा जोर पकड़ता था। इनको फैलाने के लिए क्लर्कों और बाबुओं के पास मुफ्त सरकारी टेलीफोन की सहूलत भी दस्तयाब होती थी, जिस पर पसंदीदा राब्ते किए जा सकते थे। वो इस्लामाबाद नहीं गया, लेकिन उसका अपने दफ्तर से राब्ता तो बरकरार होगा। मैंने कहा, यार कुछ होता तो वो खुद ही उगल देता। मुझे बिला वजह उसे छेड़ने की क्या जरूरत थी? मेरी मुसलसल जिरा से अव्वल खान ने कुछ चिढ़ गया। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं उससे ऐसी कोई बात नहीं करता जिसका जवाब नफी में मिलने का इम्कान हो।
तुम्हारी और उसकी बात और है, तुमसे उसकी यारी हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा इंतज़ार जारी है। मैंने उसकी तबीयत की बदमज़गी का अंदाज़ा लगाते ही मौजू बदल दिया। मैं जाग रहा हूँ, अगर तुम जलाल से बात करने का फ़ैसला कर लो तो बाद में मुझे भी गुफ्तगू से आगाह कर देना, यह ठीक रहेगा। मुझे किसी सही फैसले पर पहुँचने के लिए वक्त दरकार होगा। मैं इस मरहले पर जलाल जैसे हमदर्द दोस्त से महरूम होना नहीं चाहता।